Welcome students, 10th standard science, third chapter, metals and non-metals. Last session में हमने physical properties सारे खत्म कर दिए and we started with first chemical property of metal, which is what happens when metals are burnt in air. अब मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि chemical properties of metals ये टॉपिक देने का पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, विच वन आर मोर रिएक्टिव, विच वन आर लेस रिएक्टिव. तो अगर हम फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी का रिवीजन अगर करें तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर? व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर दे एक्चुअली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. तो ये बात से हमने एग्जाम्पल भी देख लिया. वी ऑल्सो स्टडीड what are amphoteric oxides and we covered this part. पर इस केमिकल प्रॉपर्टी से कैसे हमको एक रफ आइडिया मिलती है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, तो ये हम डिसाइड करेंगे कि व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम व्हेन दे कैन easily react with oxygen in air itself at room temperature, so we can come to know that they are highly reactive. They are so reactive that they react vigorously, catch fire when kept in open air. So to prevent the reaction with oxygen moisture, they are kept in kerosene. So ये शुरुआती सीरीज में रहेंगे सोडियम एंड पोटेशियम बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, राइट. देन बात करते हैं मैग्नीशियम की. आपको यहाँ पर नहीं दिया है वो, पर हमने रिएक्शन देखी है मैग्नीशियम रिबन की. सो मैग्नीशियम विल रिएक्ट लेस vigorously when heated in comparison to sodium and potassium. So from this we can conclude that it will be less reactive. So heat required for the reaction of magnesium with oxygen. Since heat is required, sodium or potassium, they reacted with oxygen at room temperature only. Since heat is required for reaction of magnesium, we can say magnesium is less reactive than sodium or potassium. Then we come to aluminium. Then since the reaction of aluminium with oxygen on heating takes place less readily, yani less vigorously than magnesium, we can say aluminium is less reactive than magnesium. So are you getting कि हम रिएक्शन की विगरसिटी या रिएक्शन कितनी रेडिली हो रही है उस पर तय करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ सोडियम और पोटेशियम में एयर में ही रिएक्ट हो जाते हैं. मैग्नीशियम के लिए हीट करना पड़ रहा है, एल्यूमिनियम के लिए भी हीट करना पड़ रहा है, बट एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन थोड़ी स्लो, लेस रेडिली होगी देन मैग्नीशियम. सो एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम. देन जिंक की बात करें, रिएक्शन ऑफ जिंक विद ऑक्सीजन विल टेक प्लेस लेस रेडिली देन एल्यूमिनियम. सो जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम. ये पॉइंट आपको समझ के लेना होगा. फिर आयरन और कॉपर की बात करें, अभी हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक को हीट करना पड़ता है, बट आयरन, मेटल और कॉपर दे डज नॉट बर्न इन एयर even on strong heating. They does not burn in air even on strong heating. So they will react with oxygen on prolonged heating. बहुत टाइम बाद हीट करने के बाद they will form their oxides, which clears out that iron and copper are less reactive than all these metals. और इसी हिसाब से हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी लास्ट टाइम, और वो यहाँ पे सामने पोटेशियम, सोडियम एट द टॉप, सिल्वर, गोल्ड एट द लीस्ट. तो ये है वो सीरीज़ जो आपको हर एक केमिकल प्रॉपर्टी के ज़रिए प्रूफ मिलते जाएगा आपको ये सीरीज़ का, राइट. और इसमें लास्ट पार्ट हमने रीड करके रखा था दैट सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड do not react with oxygen even at high temperature. So with that we have finished with the first reactivity part, that is what happens when metals react with oxygen. Now we move to the second part, what happens when metals react with water. Now again, how this will help you to determine the reactivity series. Then the point is, all metals however do not react with water. The intensity of the reaction of metals depends upon their chemical reactivity. For example, some metals will react with cold water. Some metals which are less reactive won't react with cold water. They will need hot water
for the reaction to take place, and some will require steam for the reaction to take place. They are so less reactive that उनको steam की ज़रूरत पड़ेगी for the reaction to take place. तो हम यहाँ से तय कर सकेंगे that whichever metals react with cold water, they are highly reactive. जिनको hot water की ज़रूरत पड़ रही है, they are somehow less reactive. और जिनको steam की ज़रूरत पड़ती है react होने के लिए, they are least reactive. तो ये हम देखेंगे step by step. So now what is the general reaction given to you? Before reading that activity, what is the general reaction given to you? Metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas. So let's write this reaction. Whenever a metal reacts with water, it will form metal oxide and hydrogen gas will be released. But there is a very important point to note down here. Whichever metals are highly reactive or whichever metals are high reactive, let's suppose बहुत सारे metals जो cold water और hot water के साथ react करते हैं, they are somehow reactive, right? And उनके केस में metal जब water के साथ react करेगा, definitely metal oxide will be formed, but यही metal oxide और further dissolve हो जाएगा. You can read metal oxides that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide. यानी उनके केस में metal oxide stable रहेगा ही नहीं, वही metal oxide और further water के साथ dissolve हो जाएगा and the compound form will be metal hydroxide. The compound form will be metal hydroxide. So with this point we can say that when metals react with water, they actually form metal hydroxide. कौन से केसेस में? इन दोनों केसेस के में हम देखेंगे कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है, डेफिनेटली मेटल ऑक्साइड तैयार होगा, लेकिन वही मेटल ऑक्साइड और फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है एंड दिस इज द एंड प्रोडक्ट. और आप इसके साथ फिर हाइड्रोजन गैस जो यहाँ लिबरेट हो रहा है वो आगे ऐड कर सकते हो. तो ये जो पहले दो कैटेगरीज में अभी हम रिएक्शंस देखेंगे, उन सब के लिए ये जनरल रिएक्शन बन जाएगी दैट मेटल व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड. और जो मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव हैं, जिनको स्टीम का झटका देना पड़ता है, उनके लिए मेटल प्लस वाटर विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. उनके मेटल ऑक्साइड और रिएक्टिव नहीं होंगे कि जो और वाटर के साथ रिएक्ट होकर ये कंपाउंड फॉर्म कर सके, तो उनके लिए ये स्ट्रेट रिएक्शन होगी. लेकिन फर्स्ट टू, सिंस दे आर समहाउ मोर रिएक्टिव, their metal oxides will further react with water and finally form this stable product. So you have to remember general reaction will be like this for the category of first two. So here it is, उन्होंने वैसे ही दिया, metal with water gives metal oxide and hydrogen, and metal oxide कुछ cases में will further react with water and form metal hydroxide. Now let's start with the examples. शुरुआत हमेशा सोडियम और पोटेशियम से करेंगे. And metals like sodium and potassium react violently with cold water. And in case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. यानी इनको पानी में भी रखना मुश्किल है, इसलिए हम इनमें केरोसिन में रखेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा. सो ये वाटर में भी ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड. और वही मेटल ऑक्साइड फर्दर और डिजॉल्व हो जाएगा एंड दे विल फाइनली गिव द प्रोडक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड, दिस हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी. सो दिस इज हाउ यू विल राइट द रिएक्शन दैट व्हेन पोटेशियम reacts with water, definitely they will form metal oxide, but वही metal oxide further water के साथ react हो जाएगा and the final byproduct will be metal hydroxide, hydrogen gas, and a huge amount of heat energy will be released as per this reaction. States भी लिखने होंगे, reaction को balance भी करना होगा. The same will happen with sodium. Sodium again will react with cold water and form sodium hydroxide, hydrogen gas, and a huge amount of heat energy will be released. So reaction is violent even with cold water, and the reaction is highly exothermic, due to which the hydrogen gas formed during the reaction catches fire
and burns, causing little explosion. So we can say sodium and potassium are highly reactive metal and could be at the top, will be at the top. अब मुझे एक पार्ट लास्ट टाइम मैंने जो स्किप किया था आपको यहाँ पर लेकर आना है. जस्ट ट्राई टू रिकॉल. अभी मैंने आपको बात कही थी कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड. लेकिन सोडियम पोटेशियम के केस में इनके जो मेटल ऑक्साइड्स हैं दे विल बी हाईली रिएक्टिव एंड दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. और आपको मैंने डायरेक्टली मेटल प्लस वाटर फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखने को कहा. पर अगर आपने इस पॉइंट पे ध्यान दिया कि जिन मेटल्स जो भी मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके मेटल ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. और वही पॉइंट को यहाँ पर कवर किया है. यू कैन सी मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर but some of these dissolve in water to form alkali. You can see here when metal oxides dissolve in water they form metal hydroxide. और metal hydroxide word आने से मालूम पड़ना चाहिए they are base and bases which dissolve in water are called as alkali. और ये भी पॉइंट डिस्कस किया था हमने that metal oxides are basic in nature. They are basic in nature. और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं they actually form a base which is hydroxide. Because they were basic in nature already, when they react with water, they actually form a base by the term metal hydroxide. और उसी के दो रिएक्शंस यहाँ दिए थे. Na2O plus H2O gives NaOH. हमने ये रिएक्शन लिखी नहीं यहाँ पर. क्यों? क्योंकि हमको पता था कि they are highly reactive one. So sodium plus water initially will form what? Sodium oxide. That is Na2O. पर वही सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और आपको डायरेक्टली NaOH प्रोडक्ट मिलने वाला है. तो वही हमने यहाँ पे लिखा. सेम विथ पोटेशियम प्लस वाटर विल गिव यू K2O पोटेशियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड विल फर्दर रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और वही हमने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दी विदाउट राइटिंग दीज टू इंटरमीडिएट स्टेप्स. और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है. बस ये यहाँ पर बिकॉज यर द टॉपिक गोइंग ऑन वॉज मेटल ऑक्साइड तो यहाँ पे उन्होंने आपको दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के रखी थी. दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, राइट. मेटल ऑक्साइड्स के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ये भी एक पॉइंट था कि these metal oxides dissolve in water to form alkali. So sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis as shown in this reactions. तो आप अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हो. अदरवाइज एग्जाम में अगर पूछे तो वो यही रिएक्शन पूछते हैं which is written here. Now we move to the third metal, that is calcium. So calcium again also reacts with cold water. तो हम यहाँ पर अब ऐसे भी आप हेडिंग दे सकते हो कि ये सब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस हो रही हैं. सो दे आर रिएक्टिव. द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम, राइट. व्हाट विल हैपन? इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यानी इसके केस में भी आपको डायरेक्टली यही फॉलो करना है. मैंने तो कोल्ड के हॉट के लिए भी आपको यही बोला है कि मेटल प्लस वाटर विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड. डायरेक्टली आपको लिखना होगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड. Okay, the heat produced in this reaction is less, hence no need to write here, which is not sufficient for to burn the hydrogen gas which is formed. Ready? So that is the point. The heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire. So here we end with the third one. So यहाँ पे आप देख सकते हो because इतनी ज़्यादा heat energy नहीं रिलीज हुई, so हम कह सकते हैं calcium is less reactive than these two. और इसीलिए सीरीज में सोडियम पोटेशियम के बाद हम कैल्शियम लिखते हैं. नाउ देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टू नोट डाउन, जिस पर एक 1 मार्क का गिव रीजन पूछा जाता है. वो है व्हाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन इट इज एडेड टू वाटर. सो द पीस ऑफ कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड stick to the surface of the metal, and that provides a buoyancy यानी upward thrust to the piece of calcium, and hence
it floats. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का गिव रीजन है, आपको नोट डाउन करना है ये भी, that calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal and provides it a buoyancy to float. So that is one additional observation to note down. Now we move to magnesium. अब कोल्ड वाटर का सिलसिला ख़त्म. अब मतलब क्या कि मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है, तो उसको कोल्ड वाटर से कुछ नहीं होने वाला है, तो उसको थोड़ा हॉट वाटर का झटका देना होगा. सो मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर. पर वाटर हॉट होने की वजह से फिर इनमें एक्टिविटी बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी आगे बढ़ जाती है, और डेफिनेटली मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. पर यही मैग्नीशियम ऑक्साइड और फर्दर रिएक्ट हो जाएगा वाटर के साथ, and the final product formed will be magnesium hydroxide, and the final product formed will be magnesium hydroxide and hydrogen gas. So ये वो रिएक्शन जिसमें आपको आगे वापस हीट एनर्जी लिखनी नहीं है, because again here the reaction won't be that vigorous, hydrogen gas released won't catch fire, right? In this reaction as well, the piece of magnesium metal will start floating in water due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. So calcium reacts with cold water, but magnesium reacts with hot water. So what we conclude? That magnesium is less reactive than calcium. So ये आपको समझ के लेना है कि कैसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज के जरिए कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है इसकी आइडिया लेते जा रहे हैं. करेक्ट. Now we move to the next part. तो ये मैग्नीशियम के बारे में पैराग्राफ दिया है, राइट. नाउ metals like aluminium, iron, zinc, they do not react with either cold or hot water, but they react with steam to form metal oxide and hydrogen. ये बात मैंने पहले ही बताई थी. रिमेंबर दैट वे कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के केस में मेटल प्लस वाटर विल गिव यू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन लिखना है आपको. एंड ओनली इन केस ऑफ स्टीम, जहाँ पे मेटल्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, उस केस में आपको ये सीधी रिएक्शन लिखनी होगी. गेटिंग. और उसी के लिए आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है जो स्टीम के ज़रिए किया जाएगा. वो कैसे? यहाँ पर देख सकते हो, बर्नर टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ग्लास वूल रखा हुआ है, सोक्ड इन वाटर. नाउ व्हाट इज ग्लास वूल? इट इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑफ ग्लास. सो ग्लास की फाइबर से बना हुआ है, अरेंज्ड इनटू अ टेक्सचर सिमिलर टू अ वुल, राइट. तो ये ग्लास वुल लिया गया सो दैट इट डज नॉट गेट डीकम्पोज्ड ऑन हीटिंग इजीली, और सोक्ड इन वाटर. अब उससे आपको आइडिया आ गया होगा कि जब बर्नर से हीट सप्लाई हो रही है, ये वाटर इवेपोरेट होगा और यहाँ से स्टीम इस मेटल की तरफ जाएगा और ये मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, एंड द रिलीज्ड गैस विल बी हाइड्रोजन गैस which will be passed on to this delivery tube and will be collected over here. Because hydrogen gas is lighter than air, it will move upward and will be collected over here. And how to experimentally determine that the gas released is hydrogen gas? When a lighted matchstick is applied to the gas collected in the gas jar, the gas will burn with a pop sound, making a little explosion, indicating that it is hydrogen, right? And metal oxide will remain behind in that test tube. तो ये वो रिएक्शन है, एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल. तो अब देखते हैं क्या रिएक्शंस है विथ स्टीम. अब स्टीम के लिए आपको खाली H2O के नीचे जो हमने L लिखा था, अब उसके आपको आगे G लिखना होगा. सो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. So since aluminum does not react with water under ordinary condition or on hot water, because अब ये क्यों नहीं होता? Why it does not react that way easily? Because of the presence of a thin layer of aluminum oxide. याद रखना, हमने ये लास्ट लेक्चर में पॉइंट डिस्कस किया था कि एल्यूमिनियम surrounds itself with a thin layer of aluminum oxide which prevents its further reactivity. So we can say aluminum is less reactive than magnesium, right? And less reactive यानी less chances of corrosion as well. Same is with zinc.
Zinc again reacts with steam to form zinc oxide and hydrogen gas. This reaction is less vigorous. And iron reacts with steam. अब बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे iron reacts with steam to form iron oxide लिखते हैं, इट इज Fe2O3. ऐसा नहीं है, इस केस में थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए स्टीम पास किया जाएगा, तो इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्ट हो जाता है एंड जो फॉर्मेशन आएगा वो आएगा Fe3O4. Fe3O4, दिस इज आयन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. तो यूजुअली हम मेटल ऑक्साइड कैसे लिखते हैं, Fe2O3, पर इसमें ऑक्सीजन के साथ एक्सेस रिएक्शन हो जाती है और आपको यहाँ पर एक अवेयरनेस रखना है दैट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, इसको भी हम आयन ऑक्साइड ही कहेंगे, पर आपको फॉर्मूला लिखना है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन. तो अभी ये आयन ओर के फॉर्म में भी होता है. अब आयन ओर बहुत जगह पर Fe2O3 भी रहता है और बहुत जगह पे Fe3O4 भी रहता है, यानी जहाँ पर एक्सेस ऑक्सीजन रिएक्ट हो गया है उस केस में Fe3O4 फॉर्म होगा और कुछ केसेस में Fe2O3. सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ दीज फॉर्मूलाज, और इस केस में आपको Fe3O4 ये फॉर्मूला लिखना होगा, एंड दैट वे वी कैन से these two are over. Now metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. Hence, they will be always at the bottom of the reactivity series. Right? So this way we have finished with the second chemical property. Now we move to the third. And ये third और fourth already हमने previous chapters में सीखा है. So let's discuss what happens when metals react with acids. What happens when metals react with acids? So पढ़ लेते हैं. Metals react with acids to give salt and hydrogen gas. Let's metals react with acid to form salt and hydrogen gas. Okay, so with that activity हम आगे बढ़ेंगे अभी. You can just read it out. Collect all the metal samples except sodium and potassium. ये एयर और वाटर में ही फायर कैच कर लेते हैं, एसिड के साथ तो एक्सप्लोजन हो जाएगा. सो दे रिएक्ट, सो डू नॉट टेक देम. पुट द सैम्पल्स सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब अदर मेटल्स एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब जैसे लास्ट इसमें हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन गैस कितना रिलीज हो रहा है, कितना विगरसली हो रहा है, ये सबसे तय कर रहे हैं हम कि विच आर मोर रिएक्टिव विच आर लेस. और उससे ज़्यादा हम बोल सकते हैं कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, हमने उसको प्रायोरिटी दी. अब ये केमिकल प्रॉपर्टी जो है विद एसिड्स, यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर कर सीरीज का अंदाज़ा लगाएंगे, सस्पेंड थर्मामीटर्स. सो ट्राई टू रिकॉल व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. तो हीट कितनी रिलीज हो रही है उसके लिए थर्मामीटर का यूज़ हो रहा है. एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, मतलब जिस केस में बबल्स ज़्यादा विगरसली रिलीज होंगे वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा. राइट? एंड विच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, यानी जिधर ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी द रिएक्शन विच विल बी मोर एक्सोथर्मिक, मोर हाइड्रोजन गैस बबल्स विल बी रिलीज्ड, एंड दैट वे वी विल डिसाइड द रिएक्टिविटी सीरीज. तो इस हिसाब से ये एक्टिविटी की जाएगी. और आपको फर्स्ट इक्वेशंस किसके लिखने हैं यहाँ देख सकते हो आप. उन्होंने तो एक भी एग्जांपल नहीं दिया बिकॉज इट इज ऑलरेडी कवर्ड, बट वी विल राइट हियर द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज सोडियम का तो ज़रूरी नहीं है. सोडियम रिएक्ट्स विद hydrochloric acid to form sodium chloride, that is not required here. Just a minute. Magnesium. So when magnesium reacts with HCl, that forms magnesium chloride and hydrogen gas will be released. So magnesium reacts quite rapidly with dilute hydrochloric acid, forming magnesium chloride and hydrogen gas. So the reaction of magnesium with dilute hydrochloric acid is less vigorous than that of sodium. So
मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, दैट इज वन। देन एल्यूमिनियम की बात करते हैं। रिएक्शन बैलेंस करना भी ज़रूरी है, सो यहाँ पर 2 लिखना होगा। नाउ एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, so it first reacts slowly with hydrochloric acid due to the presence of tough layer of aluminum oxide, पहले भी बताया था मैंने, which will prevent. But when this thin outer oxide layer gets dissolved in acid, the fresh aluminum metal is exposed, which reacts rapidly with hydrochloric acid. So the reaction will be aluminum when reacts with HCl will form aluminum chloride and hydrogen gas will be released. यहाँ पर भी बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे 2 लिख देंगे जिससे क्लोरीन 6 हो जाएगा और हाइड्रोजन को यहाँ पर 3 लिखना होगा। सो ये आपको अपने हिसाब से पॉज करके खुद से भी ट्राई करना है, बेटर होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इज जिंक। जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव जिंक क्लोराइड and hydrogen gas, but the reaction is less rapid than aluminum, so zinc is less reactive than aluminum. And last one is iron, right? Iron reacts with cold dilute hydrochloric acid to give iron chloride, which is FeCl2, and hydrogen gas will be released, and that will be less, reacts slowly with cold dilute hydrochloric acid, so iron is less reactive than zinc. So here are the reactions. As this part is already done, इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने का ये पॉइंट नहीं बनता। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट ऑल, राइट? तो हम कह सकते हैं कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन ऑल दीज, करेक्ट? सो दिस वे वी हैव बीन कंक्लूडेड दिस पार्ट। अब अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स की बात करें, 1 मिनट के लिए पैराग्राफ स्किप कर रहा हूँ मैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को तो नहीं लिया गया, तो इसमें ये होगा द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर, यानी मैग्नीशियम में सबसे विगरसली हुआ, फिर एल्यूमिनियम में, फिर जिंक में और फिर आयन में। इन द केस ऑफ कॉपर no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. In case of copper, no bubbles were seen and temperature remained unchanged. This shows that copper does not react with dilute HCl. तो ये सब कुछ टारगेट था हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरफ, और ये हमने सारा पॉइंट कवर कर लिया। Now this is the additional part which they have given, and it's a very important, again 1 mark give reason which we have to clear it out. Read karo. Now let's see what is this exceptional case given to you. Hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid. अभी हमने देखा है कि when metal reacts with acid, hydrogen gas is released. But what happens with nitric acid? It's a very important give reason. It is because nitric acid, which is HNO3, is a strong oxidizing agent. ध्यान रखना पॉइंट नंबर 1, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब हाइड्रोजन गैस एक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा। इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर। अगर हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर दें तो वो H2O बन जाएगा, दैट इज वाटर। तो HNO3 में से ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाता है, H हाइड्रोजन अलग हो जाता है, and it itself gets reduced to any of the nitrogen oxides, N2O, NO और NO2। एक बार ध्यान से वापस पढ़ो कि जब भी कोई मेटल, मान लो हमने जिंक ले लिया, when reacts with HNO3 क्या होगा? डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, ये H यहाँ पे अलग हो जाता है एंड उसको लेकिन ये ऑक्सीडाइज कर देता है, बिकॉज इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Because it is an oxidizing agent, it oxidizes the hydrogen produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides, combined होगा वो मेटल के साथ। एग्जाम्पल देख रहे इधर अभी हम। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज दे रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो पहले देखो ये यूजुअली मेटल्स के लिए ऐसा होगा, लेकिन वापस इनमें 2 जगह पर एक्सेप्शंस दिया हुआ है।
That means if we write the reaction magnesium when reacts with HNO3, then it will form magnesium nitrate. And hydrogen gas will be released. So magnesium reacts with very dilute nitric acid to form magnesium nitrate and hydrogen gas. And that way, this is the reaction which can take place. तो आपको ये गिव रीजन याद रखना होगा that why hydrogen gas is not released, because it is a strong oxidizing agent and it will oxidize the hydrogen produced to water and itself will get reduced to any of the nitrogen oxides. And that way we have finished with the third part. लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, एक ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, एक्वा रीजिया, उसको ही हम कहते हैं रॉयल वाटर. अब क्या है ये? इट इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1. दोनों इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और इनका 3:1 रेशियो में अगर मिक्सचर तैयार करें तो उसको एक्वा रीजिया कहते हैं. इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दिस एसिड्स कैन डू सो अलोन. आप देख सकते हो यूनिटी में कितनी स्ट्रेंथ है कि ये दो अलग अलग एसिड्स को सेपरेटली गोल्ड के साथ रिएक्ट करें तो कुछ नहीं होगा, दे डोंट डिजॉल्व, बट इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इफ दीज आर यूज्ड इन अ कंबाइंड वे. सो इट्स अ हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. तो ये लीस्ट रिएक्टिव वन को भी डिजॉल्व करा सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है इनमें, बिकॉज दो एसिड्स का कॉन्सेंट्रेटेड, वो भी दो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का ये मिक्सचर है. सो यू कैन कम टू नो अबाउट दिस. सो रिमेंबर दिस, लर्न करके रखना है ये व्हाट इज एक्वा रीजिया एंड डेफिनेशन ज़रूरी है बहुत. ठीक है. नाउ वी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज ऑल्सो ऑलरेडी डन. हाउ डू मेटल्स react with solution of other metal salts, और इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. याद करो, what happens when copper, clean wire of copper लेना है and iron nail, put copper wire in a solution of iron sulfate. पहले इतना देख लेंगे. और दूसरा है and put iron nail in a solution of copper sulfate. तो हम पहले iron nail का देखेंगे. आप समझ गए होंगे क्यों. आयन नेल को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो क्या होगा. सो हियर इट इज, हाउ डू मेटल्स, दिस इज मेटल, रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स. तो ये कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है. सो हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ, और हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल. तब ऐसे में क्या होगा, आपको पॉइंट मालूम है कि कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर. अब जो अकेला मेटल लिया जाता है, जो मेटल होता है यानी अकेला ही रहता है, और जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, मेटल जो लेते हो सिंपली मेटल, दैट शुड बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल हुज सॉल्ट सॉल्यूशन इज टेकन हियर. फिर से एक बार, कि जो मेटल लिया जा रहा है आपको ध्यान रखना है कि दैट मेटल शुड बी मोर रिएक्टिव देन द मेटल हुज सॉल्ट सॉल्यूशन इज टेकन हियर. सो बिकॉज आयन इज मोर रिएक्टिव, आयन अगर ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, वो उसकी जगह से उसको हकला देगा, मीन्स इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स पोजिशन एंड विल फॉर्म फेरस सल्फेट विच इज पेल ग्रीन इन कलर, राइट. हेंस द सॉल्यूशन कलर विल चेंज. और आयन जो बोल सकते हैं हम सिल्वरी ग्रेइश कलर का था, अब ब्राउन कलर का हो जाएगा, बिकॉज कॉपर इज ब्राउन इन कलर. तो ये कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा पूरा आयन नेल्स के ऊपर. दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. So here the reaction will take place and the color of the solution will change. लेकिन वही दूसरी बात की गई है यहाँ पर, put copper wire in solution of iron sulfate. Put copper wire in solution of iron sulfate and note down your observation. अभी बात कही थी मैंने, for this kind of displacement reactions to take place, the metal should be more reactive than the metal whose salt solution is taken here. तो जो सिंगल मेटल होता है इंडिविजुअल, वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए. तो यहाँ पर कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयन, हेंस नो रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो ऐसे आप सोचोगे कि यहाँ से हमको क्या रिएक्टिविटी के बारे में मालूम पड़ रहा है. अगर ऐसे कोई भी दो मेटल ले, एक मेटल और दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन, और अगर रिएक्शन हो जाए
तो क्या मालूम पड़ेगा हमको, दैट वन मेटल इज मोर रिएक्टिव देन द अदर। पर अगर उल्टा केस लेके रिएक्शन नहीं हो रही, वो एक और एडिशनल प्रूफ है कि दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, हेंस नो रिएक्शन कुड टेक प्लेस। तो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ये हमको कहीं ना कहीं सिर्फ दो मेटल्स, कोई भी दो मेटल्स में कंपैरिजन करने में हेल्प कर सकता है, राइट। और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी दो मेटल्स में अगर हमको कभी भी कन्फ्यूजन लगे तो एक मेटल और दूसरे का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाई देन वन विल बी मोर रिएक्टिव देन द अदर, ये क्लियर हो जाता है। तो ये वो सब बातें हैं दैट रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, right? Hence this way we come to know the reactivity of the metals, right? तो ये वो रिएक्शन जनरल दिया हुआ है। मेटल ए when reacts with salt solution of metal B, metal A when reacts with salt solution of B, क्या तैयार हो रहा है? सॉल्ट सोल्यूशन तैयार हो जाता है ऑफ ए, सॉल्ट सोल्यूशन तैयार हो जाता है ए का, और मेटल भी अकेला रह जाता है बेचारा। सो दैट इज द वे यू कैन रिमेंबर। और ये एक जनरल रिएक्शन के ज़रिए हमने ये पार्ट ख़त्म कर दिया, और उसी पर इन कंक्लूजन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज़ आपके सामने रखी हुई है, एंड हियर इट इज़। पोटेशियम से लेकर अगर हम करते गए तो गोल्ड तक आता है। और बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर हाइड्रोजन गैस बीच में यहाँ पर क्यों दिया? हाइड्रोजन इज़ नॉट अ मेटल, बट इवन देन इट इज़ प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। वाई? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, जस्ट अ मिनट, this is due to the fact that hydrogen also loses electrons, hydrogen also loses electrons and forms positive ions. Remember that point कि ये सब मेटल्स के साथ साथ हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है एंड फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस। तो एक्सेप्शनल केस तो सब जगह पे रहते हैं, तो ये एक नॉन मेटल हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, और इसीलिए उसको मेटल्स की लिस्ट में डाला गया है। अब आप बोलोगे फिर इसमें ही क्यों? अब ये ध्यान से सुन लो कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, राइट। आप समझ गए होंगे कि जो जल्दी रिएक्ट करते हैं उनकी ये सीरीज़ है, जो धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं उनको नीचे रखा गया। बट अगेन उसके पीछे भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। आपको इसका ज़्यादा क्लियर आइडिया जब मैं आयोनिक कंपाउंड नेक्स्ट सेशन में पढ़ा रहूँगा तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये पार्ट को एंड करना है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है that when metals lose electrons they form positive ions. Now if a metal atom can lose electrons very easily to form positive ion, उसको हम कहते हैं it will react more rapidly and hence it will be a reactive metal. तो ये जो इतने सारे metals ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कहीं ना कहीं they lose electrons very easily to form positive ion. On the other hand, if a metal atom loses electrons less readily to form positive ion, it will react slowly, so that metal will be less reactive. So sodium atoms lose electrons readily to form sodium ions, due to which sodium metal is very reactive. On the other hand, iron atoms lose electrons less readily to form positive ions, so iron metal is less reactive. And that way we have concluded this part. The second part of the chapter is over. बताया था मैंने, फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज विच कंप्लीट्स हियर, एंड द थर्ड इज रिगार्डिंग आयोनिक कंपाउंड्स जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्ट करता है, विच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं डिस्कस करने के लिए, राइट। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार गो थ्रू करो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता हूँ।